focus to the big debate. Modi government has introduced new guidelines for the national song Vande Mataram, giving it an established protocol similar to what's currently in place for the national anthem. The new rules issued by the Ministry of Home Affairs makes it mandatory for the song to be sung at government events and schools. The mandate issued by the centre applies to several government events where the president or the governor may be present. As per the new rules, all persons at an event must stand when Vande Mataram is played, and should there be an occasion where the national song and the national anthem are both played, then the national song will be played first. As per the new rule, a 3-minute 10 seconds version of Vande Mataram must be played, which includes 6 stanzas in total. This also includes the 4 stanzas of the song that were dropped by the Congress in 1937. Any person who creates any disruption during the recitation of the national song similar to the national anthem could now face a 3-year jail term. In its new rule book, the government has also made it mandatory for the national song to also be part of certain government events and has issued clear guidelines for them. Let's take a look at where this has been made mandatory. So it will be mandatory on arrival of president at state events, before and after the president addresses the nation, on arrival of governor at state events. When national flag is brought on parade, it will be mandatory to play the national song. On the unfurling of the national song, Vande Mataram will be played. When special orders are issued by the centre, Vande Mataram will be played. It will be mandatory. So what exactly has the government changed with the new rules that they have introduced? Let's tell you more about that. So now there are clearly defined protocols. Clearly defined protocols have been introduced by the centre. Defines how formal rules are going to be applied to the national song as well. Formal rules akin to national anthem. It defines how the song must be played. So there are protocols now for the national song as well. It also sets uniform practice for government events. Apart from that, the most important bit, all 6 stanzas have been given official recognition. Now remember, the decision to drop 4 stanzas of Vande Mataram and recognize only the first 2 as the national song in 1950 has been the subject of a huge political debate. It was just 2 months ago when the Prime Minister called out the Congress in Parliament for truncating the national song. मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। However, the opposition has questioned Modi government's rationale behind the new guidelines. They are accusing the centre of trying to change India's history, while some have also linked it to the upcoming Bengal elections. मैं समझता हूं कि पूरी व्यवस्था जो है ये सरकार तोड़ फोड़ के रखना चाहती है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं रही है, तो ये कुंठा से ग्रसित होते हैं। नेशनल एंथम केवल हमारे राष्ट्र की बातें पूरे विश्व में कहीं भी है तो नेशनल एंथम हमारे बजाए जाते हैं, लेकिन जब नेशनल एंथम बजता है तो प्रधानमंत्री जिसमें चलते हैं उनका अपमान करते हैं। बहुत बार ऐसे आपने देखा होगा, तो उनको इसकी गरिमा के बारे में समझता हूं कि बहुत उनका महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की चीजें आ रही है। Now, the BJP today is hitting back at the critics and says the government is only correcting historical wrongs, something that the opposition is unable to digest. I think it's a very auspicious step in the 150th anniversary of Vande Mataram's creation. Bankim Chand Chattopadhyay had the future of our country, the voices of Krantikaris in his mind, and previous governments have always suppressed the voices of the elite and of the ordinary person in favor of the elite.
And therefore, I think it's about time that the real voice of India, of Bharat Mata, emerges from the remaining stanzas of this very beautiful song. And I'm very happy that this has happened. Our children will learn that our country is not only defined by its geography, it's also defined by its culture. And that's where Viksit Bharat will get its own strength and its own speed. All right, let's open this up and go across to our guests. We're joined by Mukesh Tyagi of the BJP and Sanjeev Kaushik, political analyst. Both of you will get 60 seconds for your opening remarks. Let me begin with you, Sanjeev Kaushik. The allegation is that it's difficult for the Congress to digest a historical wrong that has been corrected now. आपका जवाब? इसमें पहले क्या गलत था जो अभी सुधारने की कोशिश की जा रही है? जो पहले 57 मिनट में गाया जाता था उसको 3 मिनट 10 सेकंड में अब निपटाने की बात हो रही है। सवाल यह है कि वंदे मातरम हम गाएंगे, हमें नहीं पता वो 2 स्टेंजा के बारे में जिसके बारे में चर्चा हो रही है, हमें नहीं पता कि वो कौन सा स्टेंजा, मुझे याद भी नहीं है, तो क्या मैं देशद्रोही हो जाऊंगा? ये कमाल का तर्क है। महंगाई, बेरोजगारी, ट्रंप के दादागिरी, इन सारी बातों से ध्यान भटकाने के लिए कवायद धर है। सीधी सी बात है कि राष्ट्रवाद के शिखर पे सवार भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने असफलताओं के लिए ढाल के जैसे इस्तेमाल करना चाहती है और वो कर भी रही है। पहले क्या राष्ट्र के प्रति हमारे मन में कोई सम्मान नहीं है? क्या ये जरूरी था कि 1-2 स्टेंजा जोड़ करके यदि कोई किसी विशेष वर्ग को यदि उससे आपत्ति होती थी कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते, कितनी खूबसूरती से पहले 2 स्टेंजा में पूरे हिंदुस्तान को दर्शाया गया है। यदि वो था तो उसमें विकृति क्या थी, वो गलती क्या थी उसमें? आपने जानबूझ करके, चूंकि इनके एक मुख्यमंत्री की आवाज को आप लगातार सुन रहे हैं कि किस तरह से वो गोली मारो ढाए वाली। ऑलराइट, संजीव कौशिक जी, आपका समय पूरा हो गया। लेट मी टेक अ क्विक रिबटल फ्रॉम मुकेश त्यागी. The opposition says this is nothing but an attempt to divert attention from the real issues. The government does not want to talk about the India-US trade deal. They don't want to touch upon other subjects about Naravne's book and other things, and that's the reason why these guidelines have been introduced, just to do damage control. The problem is that to people who are addicted to very strong appeasement culture by Congress are now suddenly experiencing a cultural shock because there is a endeavor for cultural and civilization redemption. Now any civilization or redemption, they are opposing. Let me ask one question from any Muslim scholar. Vande Mataram is not a bound to the earth, and that means that is contrary, that is against the theological philosophy of Muslim. So they have accepted Vande Mataram first 2 stanza. What is the wrong if Bankim Chand Chattopadhyay's 6 stanzas are incorporated? Look at in 1937 and also in 1923, this was sung fully. But the Muslim League pressurized and truncated the from 6 stanza to 3 stanza. So this is called complete appeasement. And Maulana Abdul Kalam Azad, he sang this. APJ All right, Abdul Mukesh Kalam. Tyagi, your 60 seconds are over. Your 60 seconds are over. Let me take a quick rebuttal from Sanjeev Kaushik. Sanjeev Kaushik जी, आपको याद नहीं है, ठीक है, आप ही की तरह कई और लोग हैं जिनको याद नहीं होगा कि ये जो 4 स्टैंजाज हैं वो भी वंदे मातरम का हिस्सा थे। यही तो हिस्टोरिकल रॉन्ग है, इसको सही करने की कोशिश हो रही है। उस वक्त अपीजमेंट हुई थी और आज उसी अपीजमेंट के खिलाफ एक करेक्टिव एक्शन किया जा रहा है। दैट्स द रिस्पांस कमिंग इन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बात आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेकंड का क्या मतलब होता है वो आप हमसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। 3 मिनट 10 सेकंड का क्या मतलब होता है किसी काम करने वाले व्यक्ति से पूछिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि समय की बर्बादी अगर कोई नेशनल सॉन्ग आ रहा है तो? मैंने कहा क्या हम 57 सेकंड में हम अपने देश के प्रति अपनी कृतज्ञता भाव और देशभक्ति सिद्ध नहीं कर पा रहे थे? क्या उद्देश्य क्या है आपका? ऐसी बात है कि जो उद्देश्य है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये उद्देश्य देश की एकता के लिए भारी पड़ने वाला है। वो अपने राजनीतिक मंसूबों में अपने कामयाब हो जाएंगे आप। संभव है, हो सकता है कि बंगाल चुनाव आपको सामने दिखाई दे रहा हो तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके इस तरह की बात करके आप अपना नंबर बढ़ा लेंगे। लेकिन सच बात यह है तो जब ये स्टैंजास निकाले गए थे उस वक्त भी क्या नंबर बढ़ाने की राजनीति हो रही थी? तब भी राजनीति थी। अगर आप इस वक्त पॉलिटिकल टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं तो संजीव कौशिक, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि किस वजह से निकाला गया। निश्चित तौर पे एक वर्ग है जो मूर्ति पूजक नहीं है। जब मूर्ति पूजन की बात करते हैं तो वो विरोध अपना दर्ज कराता है। उसको साथ में लेकर के पूरे समाज को एक सुंदर गुलदस्ते में सजा करके लेके चलने की वजह से उसको हटाया गया था। कोई प्रेशर नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है पूरे सदन में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की। उस वर्ग से एक भी प्रतिनिधित्व करने वाले को टिकट देती है। और मैंने कहा कि एकदम
दो वर्गों में त्यागी। बांट करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुकेश त्यागी हिंदू डेटीज का, हिंदू गॉड्स गॉडेसेस का उसमें रेफरेंस है, मेंशन है, उससे कुछ लोगों को दिक्कत थी उस वक्त भी, इसीलिए उसको हटाया गया और आप विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं। दैट्स द एलिगेशन, ये एलिगेशन है आपके ऊपर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई द न्यू गाइडलाइंस टू make it mandatory to read all sing and play all the 6 stanzas. You see, this is most unfortunate with this country that citizens don't have a respect for the national song. I mean, look at the contradiction, look at the double standard, multiple standard rather. In Indian Constitution, Nandlal Bose from Shanti Niketan gave 22 illustration जिसमें फंडामेंटल राइट में राम, सीता और लक्ष्मण, डायरेक्टर प्रिंसिपल में कृष्ण अर्जुन, इवन अकबर भी है 15th उसमें। तो तब इन्होंने उस पर हाथ रख करके शपथ खाते हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर डीटीज का रेफरेंस है। लेकिन वो एक कल्चरल एंगल है, एक हमारे 5000 साल की जो सभ्यता है उसका प्रतिबिंबित किया जाता है। अरे आपको इन पे रखने से कि आपके अल्लाह में कहीं कोई ख़यामत आ जाएगी, कोई मदाखलत आ जाएगी, ये जो आप लोग इतने सरफेस लेवल पे बात करते हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट योर नेशनल कैरेक्टर, इट रिफ्लेक्ट्स योर एंटी नेशनल कैरेक्टर। मुकेश त्यागी जी, संजीव कौशिक ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई ना गाए तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? No, Supreme Court has passed the directive. You don't sing, but you stand up. Give the proper respect in theaters. There is a ruling already. Supreme Court is not imposing that. The right to silence is also equally. Sanjeev Kaushik, the protocol is the same. The protocol is the same as it is for the national anthem. आप खड़े होके अपना रिस्पेक्ट तो दिखा ही सकते हैं। ने कहा कि स्कूलों में, सरकारी कार्यालय में, राष्ट्रपति के पुरस्कार समारोह में जिस तरह से ये बना दिया गया है, मैंडेटरी बना दिया गया है, कॉलेजों में कि आपको ये गाना है और 3 मिनट 10 सेकंड तक गाना है और खड़े होकर के गाना है। केवल आप डॉक्यूमेंट्री अविचित्र कहीं सिनेमा हॉल में चल रहा हो तो उसमें आपको खड़ा नहीं होना है, बाकी में खड़ा होना है। सजा उतनी ही है जो पहले थी। हमें इससे कोई, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये लोग अपनी असफलताओं को इस समय चर्चा इस पे होनी चाहिए, चर्चा इस पे होनी चाहिए कि 3% से 18% टैरिफ पे हम पहुंच गए। धौंस जमाता है एक राष्ट्रपति, उधर से धमकी देता है और कहता है कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, इसके वजह से उनका हम राजनीतिक करियर समाप्त नहीं करना चाहते, और देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। इस पे चर्चा होनी चाहिए, किस तरह से लगातार धौंस जमाता है। चर्चा तो हो ही रही है ना, उसमें भी चर्चा तो हो ही रही है कि ऑपोजिशन इन मुद्दों को नहीं उठा रहा है। अरे ऑल द टेलीविजन चैनल्स आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडो यूएस ट्रेड डील। अब ये मुद्दे की बात करिए कि आपको राष्ट्र के प्रति अगर आपको संवेदना है, आपको राष्ट्रीयता दिखानी है। अब जो है आपके ओवैसी जो है जय फिलिस्तीन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन स्वेरिंग करते हुए। क्यों बोल रहे हैं जय फिलिस्तीन भाई? आप कम्युनल एजेंडा लेकर के आते हैं, आप लगातार जो है यहाँ पर कम्युनलाइज कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर आप अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और आपके जो दोहरे मापदंड हैं, जब पाकिस्तान का जीतता है तो हैदराबाद में वहां पर पटाखे छोड़े जाते हैं, ये कहां तक की मुझे बताइए वाजिब है? बहुत जल्दी, केवल कुछ सेकंड्स में आपको दे पाऊंगी संजीव कौशिक जी, बिफोर आई रैप अप। हम कितने राष्ट्रवादी हैं ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की महिलाएं अपने पति का नाम तक लेना नहीं चाहती है। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा है। लेकिन अगर जो स्टैंजास निकाल दिए गए थे उनको इंक्लूड कर दिया गया तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? That's the question that the government is asking, that a historical wrong is being corrected. The opposition believes this is nothing but this suits BJP's agenda because there are elections happening in West Bengal. Thank you very much, gentlemen, for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया।